Namaskar, Adab, greetings. मेरा नाम आमना सिंह है and I welcome you back with Pradeep Singh from Roots to Groom and आत्मनिर्भर भारत लर्निंग टीम की तरफ से जन की टॉक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, gratitude from all of us here. आज हम we are back again to talk about another Janaki who is doing fantastic work. बहुत कमाल का काम कर रही हैं. We have Mrs. Raksha Gupta ji with us. How are you, Raksha? I'm good. I'm completely happy, healthy, and wise. How are you, Amna? I'm very well. Thank you so much for asking. So, before we start, little introduction about Raksha ji as to what Raksha ji is doing for our audiences. जो जुड़ रहे हैं, like, share, and subscribe. Show your love. Just a quick mention that we are extremely grateful for cooperation for supporting this completely for us. We have AstroChamp supporting it. We have GL Bajaj giving us coming forward as our venue and hospitality partners. We have so many good people. The Ministry of Culture, CCRT supporting it, and so many wonderful, wonderful dignitaries and scholars on board together, and the journey is still going, which is empowering. So, talking about Raksha Gupta ji is an educationalist and a social activist, founder of NGO Nari, VO, if I'm not wrong, WEO, founder of Next Learning Classes, and she's got many achievements and many awards to her credit. We welcome her on Janaki today. How are you, Raksha? Tell us about yourself. Take us through your journey, please. First of all, thank you to Mr. Pradeep Singh and Miss Amna for giving me this platform and to meet and greet people. So I'm Miss Raksha Gupta. I'm basically an educationalist and a social activist who believe in women empowerment along with the education, because education is something which you need to grow, which is the backbone. As if we say कि in Hindi we say कि किसी भी चीज को मजबूत बनाने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी जरूरी है. Same thing goes with our life and with our career. If we have to make it strong, education should be the first and foremost step. So along with that, I am a doctorate in clinical research. So I started my journey, professional life as a scientific editor. But once in every women life, there comes a pause when you have to leave the priority of your career and move to the family life. So with that, I took a break. And then again, a thought came in my mind, why not to convert the passion of women into profession? With the idea of that, I started this Nari Women Entrepreneur Organization, where I was not thinking not only to uplift the women of the lower class or any specifically to any category of society. It was for all of the ladies. There were thousands of ladies like me who, being so much educated, has left their job just because of kids and had certain hobbies. So I thought, let's convert our hobbies into a profession. We can always do. So there was a lady who was really a master chef and was an MBA and was head of marketing in some organization. I told, okay, you love cooking, let's start with a kitchen. And she started running a kitchen, and now she is having 2 restaurants. So that is the achievement how we go for. So this was the only thing the idea came in my mind, and sooner and the later people started joining. Then we worked, then along with help and support of so many people, I worked for the educating the village girls about sanitary menstrual hygiene, which is very, very important. And to my surprise, when I visited certain villages in adjoining villages of Noida, I really was surprised when I went to small stores and I asked for the napkins, sanitary napkins. They were feeling ashamed that why this lady is asking, and I was really astonished to know that still we are at this stage where we are heading. We are saying we have developed a lot and we are doing so many things, but still we are not. So that was a major concern. With that, we educated so many maids and other ladies
of the villages that instead of getting your mobile recharge and watching YouTube on that, first do this. This is very, very important. So that was also one of the agenda which I worked on. And if I talk about my institute, Next Learning Classes, it's also, I started 5 years back, as I had an experience of being professor with the university, Purvanchal University. So I started with that, and I started with only few kids, and now I have almost 80 plus kids, almost 100 globally, not only from Noida or Delhi NCR, not only from India. I'm really proud to say 100 plus kids globally from all different countries as well. So I think nothing is impossible. Nothing is impossible. We have to set an example to all those ladies, those who think, no, this is the final thing and you have to stop here. Nothing can stop you if you think once. And the best thing is your family and your kid must support whatever we are doing it. So with this, so many friends of mine who just left the job, they also started, and they are really running their business so full-fledgedly. Even many of the ladies of the villages, they started learning. I made them learn the mushroom plantation and other things. So now they are self-independent completely. They started making their own spices, and I went personally society through society to promote their businesses, and this is how they become financially independent. And I think financially independence is very, very much needed at this stage of time, when we saw the worst situation of pandemic. Those ladies, those who were financially independent, and they joined, they have saved, or they had something to support when men of the families were losing job, businesses and other things. So these ladies became the support of their family, and it was excellent when I was receiving calls, दीदी आज आपने हमें सिखाया था, तो आज पता है इस situation में भी हम कुछ कर पा रहे हैं. So that is the main thing, and I really feel blessed and thanks to God that He has sent to me to this beautiful world with certain aim, and to serve something good for the society. I hope I would try to do the best possible what I can do in near future also. Great. Raksha, jitna bhi aapne, whatever you've shared with us and the audiences at large, it talks about that it is not just about, having gender equality in the physical state of sense. It's also about in the mind, जैसे आपने sanitary pads का कहा. ये इनफैक्ट एक बहुत ऐसा इशू है जिसके बहुत ऑफ कोर्स काम हो रहा है, अब तो बहुत प्रोग्रेसिव हो गया है, लेकिन ये कैसे एक्चुअली में एक ऐसा एक एट्रीब्यूट है जहाँ पे इफ यू से यू पीएमएसिंग, इट बिकम्स लाइक अ थिंग, यू कांट से दैट, इवन गर्ल्स टू गर्ल्स, they have that thing. So let me take this thread forward with this only, ये PMSing, because these youth से बहुत relate करेगा, and I'm sure many who will watch this will understand that why we need to talk about this. So do you think it's okay if you're PMSing, you should say openly that you're PMSing, you're not feeling good, you're feeling low, you're not okay about it, you should address it openly and take it openly to break that kind of bias? Yes, I completely agree. PMSing is something, it is not some crime. I think it is a natural phenomena in a female's body, which can be which is going to happen with one or the every lady of the world. So there is no harm in saying that, okay, I'm PMSing and I'm not feeling good. Yeah, I'm not in that situation that I can travel or I can do anything. There is no harm if we are, see, these all are taboos which we have to break it, which we have to bring. I'm not saying that we have to disrespect the culture and tradition, but on the other hand, due to lack of knowledge in these topics, people have, like ladies are facing certain diseases, life threatening diseases, because they are not aware how much hygienic condition is needed during this PMSing. So if we talk about that, we have to
educate the world, and this can be done only by the women. If we talk about women empowerment, this should be one of the major topic, because if we don't do this, ladies, they will be suffering from one or the other deadly diseases, and then we won't be able to control it by spreading. And truly, when I went to the villages and I talked to those girls, and they were saying, नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, आप तो ऐसी ही बात कर रहे हो, आप हमें एक बार दे जाओगे, I'll use. Because they don't understand the importance, and they want to waste that 50 rupees in something else, rather buying a lipstick or a nail paint and not buying the sanitary napkins, because they feel like it is waste of money and we can use generally cloth or anything, whatever. Because when I told them, no, this is going to harm you, you say ki, very frequently, I want to conceive and I'm unable to conceive it. This is because of these reasons, because you people don't maintain the hygiene which is needed. Then you say, I have a uterus cancer. Then you say, I have this disease, बड़ी बीमारी हो गई, और सरकार हमारा इलाज नहीं करा रही है. सरकार इलाज कैसे कराएगी जब आप उस बीमारी को रोकने का ही प्रयास नहीं करोगे? सरकार एक लिमिट तक आपको देगी सुविधा, बट हम ऐसा कुछ क्यों ना करें कि ये ऐसी बीमारियां पर्टिकुलरली इस वजह से ना हो. देन one more agenda which I thought and started with, though due to pandemic वो ज्यादा expand नहीं हुआ, I'm thinking to restart it again. The ladies, the maids, those who are working, like supposedly where I live, there are 1500 plus maids. I told them, आप लोग कर रहे हो, it should not become a stereotype that you are a maid. Your daughter or daughter-in-law should also do the same thing. Ask them to do something different. Ask me, I'll help whatever I can. But it is something I believe ki, there should be no stereotype also. For the weaker classes, weaker sections especially, there should be no stereotype. So in my institute also, I feel like if we talk about equality, there are some weaker section ladies, those who say कि मेरी भी बच्चों को पढ़ना है same तरीके से. I say definitely they are most welcome. No, nothing will be charged from them, and they will sit along with the same students, those who are privileged enough. Because for them, for me, everybody is student, whether they are from a privileged family or whether they are from a underprivileged family, that doesn't matter. Education is same for everyone. That is what I believe. So connecting both the things together, I took this. Let's see how it goes in future. Perfectly said. Pradeep ji? Good to listen actually. अगर देखा जाए तो रक्षा मैडम जो बात करी, मैं जस्ट हाई पॉइंटर्स बता सकता हूँ कि मैडम जो बताना चाह रही है, जनरेशंस के लिए है, सोच के लिए है, लोगों के लिए. मैडम ने स्टार्ट जब किया था तो मैडम ने जो बताया कि ऑफ कोर्स एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट एंड फाउंडेशन इज इम्पोर्टेंट. तो जो हम दादा दादी के जमाने से सुनते आए हैं कि फाउंडेशन जो है अगर स्ट्रांग होगी तभी आपका करियर आगे बनेगा. और वो ऐसा नहीं है कि वो तब था तो अब नहीं, वो अब भी है और वो हमेशा रहेगा. और एजुकेशन ही वो पिलर है जो फाउंडेशंस के साथ में ग्रो अप होती है. और उसी लेवल पे मैडम काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरत तरीके से काम कर रहे हैं. और जो नारी, मैडम ने जो नारी एंटरप्रेन्योरशिप का जो मुहिम छेड़ा था, मैंने कुछ इवेंट्स मैडम के, मतलब बनारस में रह के, कुछ इवेंट्स नोएडा में रह के मैंने भी देखे हैं. और मैंने एक चीज बहुत गौर की उसमें कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग टू बिकम स्किल्ड पर्सन एंड देन ग्रोइंग अप एंड जनरेटिंग एन इनकम आउट ऑफ दैट, वो बड़ा अच्छा है, बहुत ही कमाल का है, जिससे आप भी प्रेरणा पाते हैं कि हाँ मेरे कारण कुछ हुआ. और जैसे कोविड के टाइम पे लोग दे वर स्टक अप एंड बिकॉज ऑफ दिस कहीं ना कहीं, जबकि मैडम के घर में भी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैडम को एक तरीके से फिर भी खुशी रही कि मैडम ने जो सपोर्ट लोगों को एक्सप्लेन किया, जो आपकी स्किल किया लोगों को, उन्होंने जब इनको आके बताया है कि मैं, मेरा घर चला, मेरा चूल्हा जलता रहा, वो कहीं ना कहीं खुशी तो जरूर दिया होगा कि हाँ हमने जो 2019 में प्रैक्टिस की थी, 2018 में हमने जो स्किल डेवलपमेंट किया, 2019 में जो प्रैक्टिस की, तो 2020-21 में सब लोग को घर चलाइए. बहुत कमाल की बात है. और ये जो समाज जो बदलाव होता है ना, जो जब आप सैनिटरी पैड की बात करते हैं, हमारे पब्लिक पॉलिसी में एक बहुत तर्कहीन बात
जो रखी जाती है कि हम बदलाव की जब बात करते हैं तो हम 3 चीजों के बारे में बात नहीं करते। वो 3 चीज ये हैं कि हम सोच की बात नहीं करते कि हमें बदलाव लाना है तो क्यों बदलाव लाना है, तो सोच में लाना है। हम जानकारी की बात नहीं करते हैं, हम बदलाव की तो बात कर रहे होते हैं लेकिन हम जानकारी की बात नहीं कर रहे होते। तो आप अगर जानकारी दे रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो 100 लोगों को शायद वो नहीं पूरा ग्रास्प, लेकिन 25% लोगों को जरूर वो ग्रास्प होता रहेगा। और हाँ, रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, बट वो रिसोर्सेस चाहने के लिए या रिसोर्सेस पाने के लिए भी जानकारी पता होनी चाहिए। तो जानकारी देना सबसे बड़ी मुहिम है आज की तारीख में। अगर देखा जाए तो वो जो एडवोकेसी है वो इस चीज पे जरूर है कि स्कीम की एडवोकेसी आपको बताना बहुत जरूरी है। वो एडवोकेसी आप देते रहिए। और सोच जो है, जो लोगों का सोचने का स्तर है, लोगों के सोचने में जो बदलाव है ना, वो तुरंत कभी भी नहीं आता। जब कंप्यूटर आया था तब भी कहीं ना कहीं लोग रिलेक्टेंट थे। जब मेट्रो ट्रेन आई तब भी लोग रिलेक्टेंट थे। आज जब हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं तब भी लोग रिलेक्टेंट है। और आगे भी कुछ नया इनिशिएटिव आएगा तो लोग पहले रिलेक्टेंट ही हों। तो बदलाव का जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है वो कहीं ना कहीं 10 साल से 15 साल लग जाता है। तो लेकिन जो मुहिम है, जो सोच है और जो प्रयास है वो जारी रहना चाहिए। और अक्सर मैडम कमेंडेबल जॉब कर रहे हैं आप। इट्स गुड दैट आपने कोविड के टाइम पे जो एजुकेशन को जो आपने ग्लोबली पहुंचाया, इट्स गुड टू सी। एक्चुअली वो जरूरी था। एक्चुअली उस टाइम का कह सकते हैं उस पीरियड की नीड थी और कहीं ना कहीं अब वो परमानेंट नीड बन चुकी है। डेफिनेटली ब्रिंग दिस वाज आल्सो एन इवोल्यूशन। जो मुझे लगता है कि लोगों को लगा क्या होगा, ऑनलाइन कुछ नहीं होगा, अब सब स्टॉप हो चुका है, अब यही थम जाएगी दुनिया। मैं आपको बताती हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी ये कह रहे थे अपने बच्चों से, अरे नहीं नहीं सब कुछ ऑनलाइन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। I was really surprised to listen to the views of parents being educated themselves. They were so reluctant and they were so reluctant कि नहीं मैम इसकी जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, अरे बच्चा तो ऐसे ही पास कर लेगा। बट ये फैक्ट नहीं है। आज नहीं तो कल बच्चे को स्कूल जाना ही पड़ेगा, आपको एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी। आपने कितने भी अनफेयर मीन्स से आप अपने बच्चे को पास करा दो, that should not be the funda. We are giving the wrong values if we are doing so. So through this platform also I would just request to everyone, we should not do this, because being an educationalist I have seen personally that parents, as a parents, they are so emotional when it comes to marks of a child, and then they start inculcating without thinking the wrong values of helping them and by prompting or something, and this will lose the confidence. This will lose, the kids are going to lose their confidence. So I think this should not be done. And जो हमारा मैं कह सकती हूँ आत्मनिर्भर ही हो गया, जो हमने कोशिश की लोगों को बनाने की, आज उसी वजह से कितने लोग हैं, कितनी लेडीज हैं जो बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं गई। ये 2 साल कोरोना काल के, उन्हें ये लगा कि घर चलता ही रहेगा, कोई बात नहीं, अगर 1 साल आदमी ने कम कमाया और हमने ज्यादा कमा लिया, डजंट मैटर, क्योंकि परिवार आदमी और औरत दोनों से ही बनता है। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है 2 पहिए, एक पहिया कभी ज्यादा परफॉर्म करता है और एक पहिया कब। जब कोरोना काल आया तो सिचुएशन जैसी भी रही हो, हर फील्ड में सपोर्ट किया, बच्चों से लेकर हर किसी ने। तो अगर ये आत्मनिर्भर नहीं होती हैं औरतें तो शायद थोड़ा मुश्किल होता उनके लिए अपना परिवार चलाना। परिवार फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रेस में आ जाएंगे तो आप मेंटली और हर तरीके से, इवन मैं एक अन्नपूर्णा करके मुहिम थी उससे भी जुड़ी थी इस कोरोना काल में, जहां हम लोग डेली बहुत ज्यादा खाने के पैकेट्स बनवाते थे। ऐसा नहीं है, हमने किसी को फोर्स नहीं किया, हर जगह ये स्प्रेड की बातें, आप 2 पैकेट 4 पैकेट, आप गाय के लिए 2 रोटी निकालते हो, आप अपने घर में 10 पकवान बना रहे हो और उसको फेसबुक पे डाल रहे हो, उसकी जगह अगर आप एक पैकेट खाना भी हमें बना के दोगे, we will collect it and we will send to all those underprivileged who are really in need of this. We are just making food, making dishes and flaunting it on the FB and all social media because we are blessed, we should thank, but situation outside is really worse. So instead of giving them raw food,
because we don't know in which hand it is going to. Let's cook food. You also don't have to feel burden. One packet of food किसी भी तरीके से आप पैक करो उसको, उसी बीच नवरात्रि आए, लो बहुत से ऐसे त्योहार आए, कंजकों को खिलाना है, मैं इंस्टेड ऑफ गिविंग कंजकों को ढूंढने से बेटर है क्योंकि उस टाइम पे नहीं मिलेंगी, लेट्स कलेक्ट दैट फूड एंड सेंड इट टू दोज, एंड उनमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट. आई शेयर पिक्स विद यू. हमारे घर के बच्चे, they were so eager to pack those food packets, write beautiful messages in Hindi, make drawing. मेरा खुद का बच्चा हर एक पैकेट के ऊपर ड्राइंग बनाता था, उस पे कलरिंग करता था. उसका बर्थडे आया, उसने हर एक पैकेट को सजा के कहता है मम्मा ये बर्थडे सबसे स्पेशल है. So this is how we can always set an example to the society. ये कहना गलत है कि हमें तो पता ही नहीं कि शुरुआत कहाँ से करें. शुरुआत आप अपने घर से करो, अपने बच्चे से करो, अपने आप चीजें बढ़ती जाएंगी और पता भी नहीं लगेगा. और जब उनकी दुआएं लगेंगी तो आप अपने आप ब्लेस्ड होगे और आपके आगे कितनी भी बड़ी मुसीबत आएगी वो हट जाएगी. इट विल टेक अ सेकंड, इट विल वैनिश ऑफ. True, rightly said. And आप दोनों के उससे I'll just take one leaf on it. I say कहते हैं ना वक्त पर समझ जाना, वो उसको सूझ कहते हैं. वक्त पर जिम्मेदारी को संभाल लेना समझ कहते हैं. तो ये जो एक एट्रीब्यूट है, ये जो रील और रियल का फर्क जो कोरोना काल में आई थिंक हम सब ने सीखा, जिन्होंने सीखा आई थिंक उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया. जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, मेरा एक्सपीरियंशियल एग्जाम्पल है. मेरे पेरेंट्स वर स्टेइंग इन नोएडा एंड आई वाज इन फरीदाबाद. मेरे घर पर प्रैक्टिकली अबाउट गुड मेंबर्स वर अफेक्टेड. I could not travel to take care of my parents, but the Khalsa Aid people and all the organizations were doing fantastic work. मेरे parents को food पहुंच रहा था. They're senior citizens. My brother is a resident. He's not here. He's based in UK. मेरे parents का caretaker हुआ. They were perfectly okay. Touch wood, they're healthy, wealthy. So I'm just saying there are good people. If you have good intentions, जैसे आपने कहा, कहाँ से शुरू करें? अपने घर से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें. Compassion अगर है, empathy अगर है, जुड़ रहे हैं जो लोग देख रहे हैं, जो रक्षा ने कहा उसको सिर्फ सेकंड कर रही हूँ, जो प्रदीप ने शेयर किया सिर्फ वो कह रही हूँ कि सिर्फ ये कह देना कि काम कमेंडेबल है या किसी की तारीफ कर देना छोटा नहीं है, बिकॉज आप उसकी हौसला अफजाई किस तरह से कर रहे हैं आपको अंदाजा नहीं है. आपके कहे हुए शब्द बेसिकली उसकी आई थिंक उसको और अग्रसर तरीके से और बेहतर करने के लिए जुझारू बनाते हैं. सो great, Raksha. I am so proud to know that you've been actively involved doing all the work that you've been doing. A true man, would sort of use what you call it, respect the woman. We were discussing this earlier. वो अपनी better half को या जितनी भी आसपास उसके peer mates हैं, etc. उनकी respect करता है, hands down, dignified. अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज को हम कैसे हैंडल करते हैं इन द स्पेस ऑफ एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि आप काम भी कर रहे हो, आपने देखा होगा आई एम श्योर. सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? हाउ डू यू सी दैट दोस अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज? हाउ डू यू सी एंड व्हाट इज दैट यू वुड लाइक टू ऐड ओवर इट? किस तरह से आप अवेयर करना चाहेंगे कि क्या किया जा सकता है इन दिस लाइन? See, if we talk about education, I think first and foremost thing should be equality. जब equality होगी, if I'm right, I'm able to understand your question. Yes. So equality is the first step for the education. अगर हम unequal होंगे, if we are gender biased, if we are unequal in terms of the sections of the society, we are not going to we are not going to do the justice. Right. So to break that, I started this with my institute itself, that here everyone should be treated equally. ठीक है, हो सकता है लोग मुझे कहते हैं ये कौन सा तरीका है, तुम 5 बच्चों को पढ़ा के 5 अंडर प्रिविलेज को पढ़ा के तुम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दूंगी. आई सेड मैं बहुत बड़ा काम नहीं कर दूंगी, बट मैं इतना छोटा काम भी नहीं करूंगी. हो सकता है कि वो 5 बच्चे जो जिनको सोसाइटी अनइक्वली ट्रीट करती है, वो हमारे प्रिविलेज फैमिली के बच्चों से ज्यादा बेटर हो, ज्यादा टैलेंटेड हो. सो मुझे लगता है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन,
everybody should be given equal treatment. I think government is also working with that. EWS and economically weaker sections की जो हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में, तो आई हैव सीन पर्सनली, मैंने भी कुछ बच्चों को देखा है एडमिशन लेते हुए, एंड रियली दे आर डूइंग गुड. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उनको अपने दिमाग और दिल हर जगह से अनइक्वल वाली चीज को पहले हटा देना चाहिए. हमारे लिए सबको ही एक समान होना चाहिए. मैं अपने आप को इतना ब्लेस समझती हूँ. एक दिन एक लेडी ने मुझे कॉल किया और वो कहती है कि मैं अपनी मेड की डॉटर के लिए आपके पास एडमिशन कराना चाहती हूँ, क्या फीस स्ट्रक्चर है. तो मैंने उनको बोला, इफ वो अगर आपकी मेड की डॉटर है, देन देयर इज नो फीस स्ट्रक्चर. she wants to study, that itself is a biggest thing. That itself is a biggest thing. तो मुझे लगता है अनइक्वालिटी जैसा शब्द हम सबको मिलकर एजुकेशन में से बिल्कुल हटा देना चाहिए. ठीक है, जो लोग बहुत ज्यादा प्रिविलेज हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, भगवान ने ब्लेस किया है. बट हम अगर अपने, आज मेरा भी बेटा है, वो कहता है मम्मा ये बहुत अच्छी बात है कि आपके यहाँ सब बच्चे एक ही साथ एक ही जैसी चेयर पे बैठते हैं. मैंने बोला देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस. वो बच्चा है, उसका जन्म कहाँ हुआ है, दैट डजंट मैटर, बट शिक्षा के लिए हर चीज एक होनी चाहिए. तो आई बिलीव कि अनइक्वालिटी शब्द जो है वो एजुकेशन इंडस्ट्री से हटा देना चाहिए. और प्रदीप सर इस पे बहुत ज्यादा कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि वो खुद रूट टू ब्लॉसम के वो है फाउंडर. तो आई थिंक ही इज गोइंग टू सपोर्ट इन नियर फ्यूचर आल्सो इन द सेम थिंग. मैडम हमारे दरवाजे तो हमेशा खुले हैं, सबके लिए खुले हैं. नॉट ओनली इन लखनऊ, मेरा जहाँ कहीं भी कनेक्शन है, जहाँ कहीं भी मेरे पास रिक्वेस्ट आती है. आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मैंने कई बार बोला है, लेकिन वो छोटी बात नहीं है एक्चुअली में. मेरे पास रिक्वेस्ट आया केवी टीचर का, कि दिल्ली के 2 बच्चे हैं, उनके दोनों पेरेंट्स कोविड में नहीं रहे, सर फीस कैसे हो. मैंने कहा आप एप्लीकेशन लिख दीजिए मेरे को. उन्होंने मेरे को एप्लीकेशन लिखी. मैंने WCD मिनिस्टर को टैग करते हुए और दिल्ली गवर्नमेंट को टैग करते हुए, और मैंने वो एप्लीकेशन DPS भेज दी. DPS अपना नोएडा गई. 15 दिन के अंदर मेरे पास रिप्लाई आ गया, प्रदीप जी हमने दोनों बच्चों की फीस माफ कर दी. आप सोचिए DPS की फीस क्या है, सबको पता है, सबको पता है. और कितना बड़ा दिल चाहिए उस फीस को. ऐसा नहीं है कि दिल नहीं चाहिए, दिल चाहिए. वो थॉट आपको, वो सोच, वो विचार रखना होगा कि दोनों माँ बाप नहीं है, कैसे होगा. तुरंत 15 दिन के अंदर लेटर आ गया कि मेरे पास, और तब गवर्नमेंट की स्कीम नहीं आई थी. आफ्टर 15 और 30 डेज अगेन गवर्नमेंट की स्कीम आई, और मैंने सारे पेरेंट्स को कन्वे किया कि गवर्नमेंट की स्कीम अब आ चुकी है, ये सेंटर्स हैं दिल्ली के, जहाँ पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कराइए और अपनी अपनी फीस को माफ कर दीजिए. मैं यहाँ भी किया, मेरे को जहाँ से नहीं, ये होना चाहिए. यहाँ पे भी कई ऐसे हैं सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चों के लिए सेटअप तैयार करके उनको पढ़ाया जा रहा है. क्योंकि जब वो बच्चे आते हैं और जब आप उनकी बात सुनिए, वो मतलब मुझे ऐसा लगता है बच्चे का पैसे से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए. ठीक है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट रन कर रहा है वो उनका प्रोफेशन है डेफिनेटली, बट अगर 100 में से अगर हम 10 बच्चों के लिए भी कुछ गुड डीड कर देंगे तो देयर इज नो हार्म. भगवान, मतलब आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव, कंप्लीटली बिलीव इन गॉड. और इस 2 साल के दौरान तो मैंने ऐसा, मुझे लगा है कि भगवान बिल्कुल हमारे साथ है. तो अगर आप सच में कुछ गुड डीड करना चाहते हैं तो अनइक्वालिटी जैसा शब्द हम और आप मिलके ही हटा पाएंगे. कहीं अचानक से कुछ नहीं ऐसा होगा कि बिजली चमकेगी और बदल जाएगा. ये हम और आप मिलके ही बदलेंगे. और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे आप बात कीजिए, जो धीरे धीरे, और वो बच्चों के चेहरे की खुशी देखने लायक होती है जब उनको ये लगता है कि हम एक बहुत अच्छी जगह पढ़ रहे हैं. वो एक प्रेस्टीज की बात हो जाती है उनके लिए. उन्हें लगता है कि हम एक बहुत अच्छी जगह, उनका कॉन्फिडेंस और लगन डबल हो जाती है, बिकॉज दे आर ट्रीटेड इक्वली एंड खुश हो, मतलब अपने आप को भी खुशी मिलती है. बिल्कुल सही. एंड जेंडर इक्वालिटी जो है बेसिकली इन एजुकेशन पर से, क्योंकि आपका क्षेत्र वो है, लेकिन आप जो और भी काम करती हैं, यू नो, इन रिगार्ड टू द एक्टिविज्म दैट यू डूइंग, सो स्टार्ट जो है वो
कहीं से भी इंसान कर सकता है, कहीं से भी वो बदलाव लाने की वो चाह बेसिकली चाहिए। जैसे प्रदीप ने कहा कि वो फी कराने के लिए वो एक एफर्ट है, एक छोटा सा ख्याल है, वो मानसिकता होनी बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि easier said than done है, होता कहाँ है। So anyway, that's a different thing altogether. So gender equality in education, if we talk about, is about like every boy, girl, man, woman, third gender has the right for equal, opportunity. Fact remains. And social हो, cultural हो, जैसे आपने कहा कि पैसे से बच्चों का कोई ताल्लुक है नहीं। आप जो जिस फील्ड में काम कर रहे हो, या अगर हम इफ वी टॉक अबाउट सीनियर स्टूडेंट्स, कॉलेज गोयर्स, वी टॉक अबाउट देम, उनका पर्सपेक्टिव है बेसिकली चेंज करना बहुत जरूरी है। बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग विद अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस, व्हेन आई गो फॉर माय सेशंस एक्सेट्रा, आई हैव सीन दैट बॉयज नीड दैट काइंड ऑफ गाइडेंस टू। अगर हम हमारी लड़कियों से एक्सपेक्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड the balance of society that we are living, it is एक ingrained mindset है ना हमारा। जैसे स्मृति ईरानी जी का हमेशा मतलब मुझे आता है, मैं वो कोट करती हूँ, और मैंने पहले भी ये बोला है कि she said when she travels abroad, तो उनकी जितने भी colleagues हैं etc, वो there developed countries हैं of course जहाँ वो जाती हैं usually, so I'm sure आपने सुना होगा कि she said कि मुझे ये कहा जाता है कि आप बहुत ही रूढ़वादी हैं, कि आप अपने हस्बैंड से पीछे चलते हैं, व्हाई डू यू वॉक बिहाइंड हिम, आप पीछे क्यों चलती हैं। तो उनका एक बड़ा कमाल का उत्तर था दैट शी सेड, मैं इसलिए पीछे चलती हूँ कि मैं उसको संभालूं, बिकॉज आई एम शक्ति। सो नारी शक्ति सम्मान जो हमें करने जा रहे हैं, जनकी, ये क्यों मैंने शेयर किया, मैंने इसलिए शेयर किया, जनकी इज फॉर द पीपल। It has nothing really honestly to do with women. It is about that thought, it is about that understanding that are you that Shakti, do you have that fire in you, do you have those elements in you कि आप सबको साथ लेकर चल सकें बिना insecurity के। She rise break the bias is not about saying that oh she rising, it is about can you see the other rising, Yes. can you do that? People don't do that बिकॉज हमारी इन कॉन्शियसनेस अगर हम देखें, जैसे आपने कहा कि कोविड ने ये सिखाया कि भगवान हमारे क्षण क्षण में, कण कण में हमारे साथ हैं, राइट। लेकिन ये सच है, कॉन्शियसनेस में कोई भी आप वेद उठाइए, कोई भी ग्रंथ उठाइए, वो यही कहता है कि अगर आप में वो सूझ नहीं है टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज डिवाइन अल्केमी, आप शायद रिलेट ही नहीं कर पाएंगे विद द बिगर पिक्चर which is in store. So you need to have that compassion. You have to feel whole within you. So masculine, feminine, you are complete. You are basically complete, right? So it is not where one is marginalized. Yeah. Right. It is about how you make the other person thrive. I know, Raksha, you need my support. I will give you my support hands down. I know Pradeep ji is doing fantastic work, but I need his support somewhere. I know that I won't possibly get it, right? Yes. That is what is required when it comes to the mindset of the youngsters also, because when I take sessions, the whole idea is that जब हम support की बात करते हैं वो नहीं मिल पाता, इसलिए पाता because boys usually personally that's why the youngsters who are watching, please don't take it personally, but मैंने ये देखा कि boys थोड़े hesitant होते हैं कि I cannot do a domestic chore, मैं नहीं सकता हूँ, मुझे आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग दैट। बट जब लड़की कर सकती है तो लड़का कर सकता है, एंड देयर आर मेनी बॉयज, देयर आर मेनी यंगस्टर्स हु आर डूइंग इट, बिकॉज़ इंडिपेंडेंटली आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको सब करना पड़ता है। So coming back, very interesting conversation, very interesting thoughts and amazing work आप जो कर रहे हो। Pradeep ji, you'd like to add something? Just to add on to this learning actually, कि लड़की कर सकती है कि लड़का कर सकता है, वो छोटे से सिखाना पड़ेगा। That's what nowadays, अगर आप हमारे जो स्कूल है, जो हमारा जो प्री स्कूल है, अगर आप उसकी पोस्ट देख रहे होंगे तो हम सबको सब कुछ सिखा रहे हैं। Yes. और सभी बच्चों को हमने पॉलिश करना सिखाया, सभी बच्चों को हमने कपड़े धोने सिखाए, सभी बच्चों को हमने खाना बनाना भी सिखाया, इररिस्पेक्टिव ऑफ गर्ल और बॉय, सभी बच्चों को हमने कपड़े तय करके कैसे रखे जाते हैं। और वो इसलिए नहीं सिखाया कि क्या बोलते हैं हमारे करिकुलम में, नो,
करिकुलम में तो वो है ही नहीं, वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं, वो तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं जिस चीज की Fine note. वो हाँ, फाइव पिलर्स की बात Five करते हैं। yeah, आप दोनों भी एजुकेशनिस्ट हैं, आपको पता है कि वो क्या बात कर रहे right. हैं। और हम जो चीज एड्रेस करना चाह रहे हैं कि अगर आपकी जो अपब्रिंगिंग है इस तरीके से नहीं होगी, तो जब आप बड़े होंगे ना, जब आप कॉलेज में जाएंगे, जब आपके पास बर्डन आएगा, जब आपके पास रियली में टफ टाइम आएगा, तो आप कहीं ना कहीं उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे या उसको टैकल नहीं कर पाएंगे। इन चीजों के लिए हम उनको तैयार करेंगे। मेंटल प्रेशर आ जाता है। आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। एक बार बनारस में एक फंक्शन में जब मैं प्रदीप जी से भी मिली थी, तो वहां पे जो काशी की वो राजकुमारी थी, उनसे भी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने स्टेज पे वहां पे कुछ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पे बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे स्टेज पे ही बोला था कि बेटा एक मुहिम ऐसी जरूर चलाना जहां ये जरूर कहना कि बेटे को शिक्षित के साथ साथ हर तरीके से आत्मनिर्भर बनाओ और बेटे में सबसे ज्यादा संस्कार डालो। मतलब यहाँ जेंडर इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रही हूँ कि लड़कियों में, हम अगर लड़कियों को ये सिखाते हैं कि आपको सभ्यता से पेश आना है, तो वो हमें लड़कों को, उन्होंने बोला लड़कियों को तो हम सारी चीजें सिखा देते हैं, गाड़ी चलाना भी सिखा देते हैं, उसमें कोई आन बान शान नहीं खराब होती है। तो लड़का अगर किचन में सब्जी काटेगा तो उसमें आन बान शान खराब नहीं होनी चाहिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ एक ऐसा अभियान और शुरू करेंगे जहां हम बेटे का स्लोगन लेके कुछ करेंगे जिससे कंप्लीट इक्वालिटी आ जाएगी कि जो चीज लड़कों में लैक हो रही है उसको लेके एक अभियान, और लड़कियों के लिए तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, तब कंप्लीट इक्वालिटी आ जाएगी। जो लोगों का माइंडसेट है, जो टाबू है, स्टीरियोटाइप उनके दिमाग में चल रहा है, वो खत्म होगा। क्योंकि लिटरली जब लड़के बाहर पढ़ने जाते हैं, यहाँ तो मम्मियां एक कप पानी भी नहीं उठा के पीने देती हैं, और जब यही बच्चे बाहर जाते हैं तो उनके ऊपर सेल्फ वर्क का इतना प्रेशर आता है that they start degrading their performance in academics and jobs. तो वो चीज बैलेंस करना अगर हम बचपन से, और एक चीज और, किसी भी चीज को सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप बोलिए कि नहीं जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तब सिखाएंगे, बड़ा होते होते उसको और बहुत सी चीजें सीखनी है। तो मुझे लगता है कि जो राइट टाइम है, आफ्टर 5 years we should start inculcating all the things which is necessary। जो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो आत्मनिर्भरता की शुरुआत बच्चों में भी 5 साल के बाद से आ जानी चाहिए। मतलब हमें डालना शुरू कर देना चाहिए। मतलब अगर आज मैं वर्किंग हूँ, आप वर्किंग हो, बीइंग अ मदर, मुझे लगता है कि आपके भी बच्चे इतने इंडिपेंडेंट होंगे कि दे आर नॉट गोइंग टू बी हंग्री व्हेन मम्मा विल कम, देन ओनली आई विल गेट द फूड। दे शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट टू एटलीस्ट feed their hunger when in absence of anyone. I think I'm not saying they have to lit the gas for the same, but at least they can put butter on the bread and they can eat, and they should not wait. That should be done irrespective whether it is a boy child or a girl child. और जो हमारे बड़े बुजुर्ग है जो कहते नहीं 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 लड़का है बच्चा है, उनको भी देखिए वो गलत नहीं है, उनको हमें समझाना पड़ेगा कि समय बदल गया। पहले फोन ऐसे घुमा के बात करते थे, अब यूं बात होती है। आज आप फेसबुक चला रहे हो मम्मी, तो आज जमाना इतना बदल गया है कि हमें अपने बच्चों को, लड़का हो या लड़की, उसको सब कुछ सिखाना पड़ेगा। अगर हमें एग्जिस्ट, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट करना है, अगर मेंडल की थ्योरी को प्रूव करना है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, तो वो इसी तरह फिट होगी। नहीं तो आप बाहर भेजोगे और वो परेशान होके एट द एंड ऑफ द डे he or she is not going to be one of the survival of the fittest. True. So कमाल की चर्चा है, कंटिन्यू की जा सकती है, कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है सिर्फ ये बताएंगे, रक्षा जी हमारे साथ एजुकेशनलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविज्म में बहुत स्ट्रांगली काम कर रही हैं, और समवेयर डाउन द लाइन हम बात कर रहे हैं अबाउट हाउ we can break the bias and bring about that understanding where emotional literacy and financial literacy is equally important for whether it's a man or a woman or the third gender as well. We are trying to and get the cooperation from all across, saying that बहुत जरूरी है ये समझना कि रिफ्लेक्ट करने का समय यही है, ऑब्जेक्टिवली सोचने का समय यही है, जजमेंट्स पास करने का समय ये नहीं है। कोविड के बाद अगर आपने ये नहीं सीखा है तो मुझे लगता है
ये चर्चा जरूर सुनिएगा और एक बार सोचिएगा जो रक्षा ने कहा, जो प्रदीप ने कहा और कुछ जो मैंने कहा. If that makes sense with you, that connects with you, do a like, share, subscribe and follow the handles of ANBLP, Pradeep Singh and Raksha Gupta ji. So Raksha, before we like sort of wind up, एक छोटा सा सेशन हम करते हैं which is called striking quickies at Janki. So उसके अंदर हम आपसे rapid questions पूछते हैं कुछ फटाफट से. सो जो आपके दिमाग में आता है फर्स्ट वो आप शूट कर सकते हैं. प्रदीप, वुड यू लाइक टू आस्क दैट टुडे? Go ahead. It's your baby only. I am okay. So let me अच्छा, just. मैं एक क्वेश्चन चलिए पूछता हाँ चलिए प्लीज. या it will be fun. रक्षा जी से. रक्षा जी, नोएडा की बनारस. बनारस. नोएडा और बनारस. Over to Amna ji, you. चलिए, नोएडा से बनारस तक लड़की गई, कहती है बनारस जाएगी. ओके, तो पान खाएगी कि आइसक्रीम खाती है? पान खाएगी. ऑल राइट. अच्छा, ये बताइए कि बेटी बचाओ या लड़ सकती हूँ? बेटी लड़ सकती हूँ. ऑल बचाओ वाला फेज निकल गया. अब हम लोग लड़ सकती हूँ वाले फेज में आ गए. बचाओ वाली अवेयरनेस अब अपने एम को छूने के कगार पे है. अब हम लड़ सकती हूँ वाले में आएंगे. जिनको बचा लिया अब उन्हें लड़ना सिखाएंगे. नाइस, आई लाइक दैट. सो वर्ड प्ले बहुत अच्छा है, कमाल का है. अब मुझे बताइए, घूंघट की यार या तलवार की धार? तलवार की धार. क्या बात है. So Nari Shakti Samman happening. Thank you, Raksha, for this. Nari Shakti Samman happening on the 1st of May at GL Bajaj Management Institute, Noida. We look forward for having you. We have Raksha Gupta ji here for such wonderful conversation and share of thoughts. Pradeep Singh ji and I together are looking forward to host you all. Like, share, subscribe, and shall see you the next time. Thank you for joining us. Your closing notes, Pradeep. Just my closing note is, of course, मैडम बनारस से हैं और बनारस की संस्कृति पूजा अर्चना से शुरू जरूर होती है, लेकिन वो तलवार के साथ रहती है. ये सबको ध्यान रखना चाहिए. एंड एक बात बहुत कमाल की चीज बोलूंगा, जो रक्षा जी बोल रही थी कि उन्होंने अपने बच्चे को, देखिए कोई भी लर्निंग जो है ना, हम कहीं ना कहीं अपने घर, अपने प्रदेश, अपने क्षेत्र से शुरू कर. एक छोटा सा लर्निंग हमने भी शुरू किया था जब कोविड हुआ. तो सब लोग कह रहे थे कि हमारा काम कैसे होगा, स्पेशली हमारा आत्मनिर्भर भारत का काम कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास तो कोई टीम थी ही नहीं जो ऑनलाइन काम कर सकती हो. आपको पता है हमारे यहाँ इंटर्नशिप किसने की? मेरे लड़के ने और गायत्री मैडम की लड़की ने. इन दोनों बच्चों ने इंटर्नशिप, और इन दोनों बच्चों ने जो इंटर्नशिप की उसका हमने उनको बकायदा सर्टिफिकेट जारी किया. बहुत अच्छी बात है. That was a proud moment for both गायत्री मैडम एंड मी. हमने हमारे ही बच्चों को इंटर्नशिप कर. कितनी अच्छी, कितनी कमाल की बात है. और वो मैंने कहीं ना कहीं मैंने देखा सोशल मीडिया पे और लिंक्डइन पे भी और अदरवाइज आपसे, उस टाइम पीरियड में लोगों के अंदर ये विजन आ चुका था कि अब आपको जो जब चेंज करना होगा ना, ये जब आप स्टकअप होंगे तो अपने लोगों से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, बिल्डअप करना पड़ेगा. जिस हम ब्रेक द वाइज की बात कर रहे हैं, घर से शुरुआत करने की कोशिश पहले करनी पड़ेगी, अपने एरिया से शुरुआत करने की कोशिश पहले करनी पड़ेगी. मैं तो एजुकेशनिस्ट हूँ, मेरे यहाँ लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं. हम राइट टू एजुकेशन की बात भी करते हैं, हम राइट टू जेंडर की भी बात करते हैं. हमारे यहाँ तो इक्वालिटी इसलिए हम और मेंटेन करते हैं कि हमको एक जैसा सिलेबस पढ़ाना है, एक जैसा ज्ञान सबको देना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस कम्युनिटी या किस कास्ट का या किस सोच का. तो हम ब्रेक द वाइज तो एजुकेशन हमेशा करता आया है. एजेंडा जब बड़े होकर चेंज होता है. एजुकेशन पिलर्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे कोई एजेंडा नहीं होता है, एंड हमेशा वो ब्रेक द वाइज को सपोर्ट कर रहा होता है. इन्हीं वक्तों के साथ थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस. सपोर्ट करते रहिएगा. लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस अपकमिंग प्रोग्राम दैट इज फॉर नारी शक्ति सम्मान कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड. And also we are looking forward for the support for the Janki skill centers, which we are actually targeting for several centers and several cities across India. Let us see the support which is being extended by others. So thank you for all. I'm closing for the day. Thank you, Raksha ji. Thanks for again. Raksha ji, thanks. Thank you. Like, share, subscribe, guys. Thank you. Thank you.